میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کرنے کے کاموں پر لگ جائیں اور نہ کرنے کے کاموں سے خود کو 100% گریزاں کر لیں، اور یقینی بنائے اس بات کو کہ ہم ان کاموں کے قریب نہیں پہنچیں گے جن کاموں کے کرنے سے مسلم معاشرے کا شیرازہ بکھرتا ہے، یا مسلم قوم کو کسی طرح سے ہر پاتا ہے، یا مسلم سماج میں کسی نوع کی کجی واقع ہوتی ہے، کسی طرح سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ کرنے کا سیدھا سیدھا سا پوائنٹ پر آ کر عرض کر رہا ہوں، سیدھا سیدھا کام ہے۔ میں یہ تیسرا سال ہے میرا، دھولڑی والوں سن رہے ہو نا؟ میں تیسری مرتبہ آپ کے یہاں آیا ہوں اور تینوں مرتبہ ایک ہی بات کہہ کے جا رہا ہوں، نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پھر وہی کہہ رہا ہوں۔ دھولڑی کے غیور نوجوان سنیں، توجہ کریں، میں پھر وہی سبق دہرا رہا ہوں۔ اگر آپ اس زمین پر اپنی سلامتی چاہتے ہیں، اپنا تحفظ چاہتے ہیں، باطل کے چنگل سے آزادی چاہتے ہیں، حکومت کے ناپاک اس پنجے استبداد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں صاف اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا آپ ابھی بھی داڑھی کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں؟ جب آپ پر ہے ساری دنیا کے لوگ خیرات کی تقسیم لے کر خود پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور تم رب کے عطا کردہ نظام پر شرمندہ ہو۔ اجمل صاحب داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ محمد الرسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہوا چہرہ لیے گھوم رہا ہے۔ نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، چہرے پہ سنت سجاؤ، ملا بنو ملا، آنے والا دور ملاؤں کا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ اور اس کو حدیث پاک سے ذرا سن لیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، قرب یہ زمین کا جو نظام ہے، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ہر کچے پکے گھر میں محمد کا دین پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ کامیابی انہی کا حصہ ہوگی جن کی جھولی میں ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں سے محمد الرسول اللہ کا دین ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت موٹے وے میں، بہت صاف ستھرے لفظوں میں، بہت آسانی، یعنی آسان زبان میں اپنے چہروں پہ سنت سجائیے، داڑھی رکھیے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں۔ اجمل صاحب میرا بیاہ نہیں ہویا تو کیا ہوا؟ بیاہ نہ ہو، بیاہ نہیں ہویا جی، بیاہ دھولڑی کا نوجوان دھکے کھاتا پھر رہا ادھر سے ادھر۔ حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میں ذرا انمیرڈ ہوں، کنوارا ہوں، اس لیے میں ابھی داڑھی نہیں۔ تو کیا مسلمان کنوار پن کی حالت میں داڑھی نہیں رکھتے؟ اس کا داڑھی سے تعلق کیا ہے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہوا ہے؟ اور بابا، جس لڑکی کو محمد الرسول اللہ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، وہ اگر آپ کے نکاح کا حصہ ہے تو یہ آپ کی بربادی کی علامت ہے۔ ایسی بیٹیوں پر لعنت ہے، ایسی بیٹیوں پر کفر ہے، ایسی بیٹیوں پر افسوس ہے، ہزار بار افسوس ہے کہ ان کو ظالموں کے چہرے پسند ہے، اور اگر نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ ایک بیٹی کیسے یہ بات کہہ سکتی ہے؟ ایک مسلم خاتون کیسے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ جی نا میں نہیں کرنے کی کسی داڑھی والے سے شادی؟ ہاں وہی چکنا بڑھیا لگے، جس کے نہ دین کا پتہ، نہ دھرم کا، نہ ایمان کا پتہ۔ نتیجہ دیکھ رہے ہو، ہر دن آپ کو ایک خبر مل رہی ہوگی کہ فلاں ایک لڑکی تھی، اس کا معاشقہ فلاں سے تھا، اس نے اپنے مذہب کی دہلیز کو کراس کیا، اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی زمین کو قبول کیا، ابھی چند مہینے نہیں چند دن گزرے تھے، اس کی لاش فلاں نہر پہ پڑی ہے، فلاں جنگل میں پڑی ہے، فلاں کنویں پہ پڑی ہے، اس کو کاٹ دیا گیا۔ یہ نتیجہ اسی بات کا ہے، تم محمد کے دین کو ٹھکراؤ گے، تم محمد الرسول اللہ کی دہلیز کو ٹھکراؤ گے، اور اللہ نے دارین میں عزت کا وعدہ محمد کی وابستگی پر کیا ہے، محمد الرسول اللہ کو چھوڑنے پر نہیں۔ اس لیے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دھولڑی والوں سن لو، ایمان میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ من آیا تو نماز پڑھی، نہیں تو نہیں، مغرب میں ماحول تھا تو نماز پڑھی گئی، فجر میں نہیں تھا تو نہیں، ظہر میں نہیں تھا تو نہیں، پھر عشاء میں نہیں، مغرب کا ماحول کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رمضان آیا تو مسجدیں آباد ہو گئی، شب برات آئی تو مغفرت کے پروانے لینے کے لیے آپ چل پڑے۔ اتنی سستی بھی نہیں ہے جنت کہ آپ چند ایک وظیفے پڑھیں گے اور جنت آپ کی اور آپ کے باپ دادا کی ہو جائے۔ اگر اتنی سستی آپ جنت سمجھتے ہیں تو شاید فلسطینی آپ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر آپ جنت کو
है। वहां माएँ लोरियां नहीं सुनाती है, वहां माएँ कुरान सुनाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ पर मुश्तमिल नगमात सुनाती है, अल्लाह की हम्द व सना सुनाती है। अगर जन्नत इतनी सस्ती थी तो फिर 40,000 फिलिस्तीनी जामे शहादत नोश न करता, वो भी वजीफा पढ़ लेते और काम चल जाता। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ईमान में इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए, और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का सीधा सा कॉन्सेप्ट, गुनाहों भरी जिंदगी का खात्मा कीजिए, एक एक गुनाह का चुन चुन कर खात्मा कीजिए, एक एक गुनाह का बाइकआउट कीजिए, अपने वजूद पर इस्लाम नाफिज कीजिए। मैं गुज़िश्ता 2 सालों से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अपने आप को मुसलमान जाहिर करो। तुम्हारे वजूद की हिफाजत का बुनियादी जरिया है कि तुम अपने आप को शो करो कि तुम मुसलमान हो। अगर तुम छुपाओगे रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट पर और अवामी मकामात पर, अगर ये पता न चल सका कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, तो जिस तरह लिंचिंग का माहौल मुल्क में पनप रहा है, परवान चढ़ रहा है, अब्दुल्ला को वहां मार दिया गया, अब्दुल रशीद को वहां मार दिया गया, हारून मसऊद को वहां मार दिया गया, आयशा सुमैया को कत्ल कर दिया गया, तो ये यके बात नहीं करे, हर एक पर एक्सपेरिमेंट होगा, हर एक को इसी तरह खत्म करने की साजिश और प्लानिंग की जाएगी, और नतीजे में कोई महफूज नहीं रह सकेगा। इसलिए आपकी खिदमत में बसद एहतराम अर्ज है, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए। नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं, अपनी तन्हाई की हिफाजत कीजिए, रात की तारीकी की हिफाजत कीजिए, गौर कीजिए आपने ऐसा सजदा किया है आज तक या नहीं जो खालिस अल्लाह के लिए हो। ऐसी घड़ी आपको मुयस्सर आई कि नहीं जिसमें अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं था, ना आप हुकूमत से डरते थे, ना आप ताकत से डरते थे, ना आप किसी की प्लानिंग से डरते थे। एक लम्हा आपकी झोली में हो, चंद साथी आपकी झोली में हो, ताकि आप अल्लाह के हुजूर कह सके कुछ घड़ियां ऐसी लाया हो जिनमें आपके खौफ के सिवा मेरे कल्ब की जमीन पर किसी का खौफ नहीं पाया जाता था। गुनाहों भरी दुनिया का खात्मा कीजिए, ताआत पर आइए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, उलमा से वाबस्तगी इख्तियार कीजिए, मसाजिद को आबाद कीजिए और मजमूई लिहाज से मुल्ला बनिए। हजरत मुल्ला बनिए। ताजा एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे मुल्क के इंतहाई सदमाआब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जिनकी पार्टी के और जिनके मुताल्लिकीन अफराद महाराष्ट्र की सरजमीन पर हुकूमत के खानों के लोग मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, मस्जिद में घुसकर मारेंगे। तवज्जो है आपकी, ये खबर आप तक पहुंची? धमकियां दी गई मुसलमानों को। एक पार्टी लीडर कहता है कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। जरा हुकूमत का दोहरा रुख देखिए, उनकी पार्टी का एक लीडर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहता है घुसकर मारेंगे, और उधर प्राइम मिनिस्टर ब्रुनाई की सरजमीन पर वहां के सुल्तान की मौजूदगी में उसकी मेहमानी कबूल करते हुए मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। एग्जाम्पल सुनिए, और अगर आप अपने दिल की जमीन पर जमीर के हथौड़े से दस्तक दे सकते हो तो देने की कोशिश कीजिए। आपको दाढ़ी रखते हुए आती है, आपको मुस्तफा का लिबास पहनते हुए आती है, और आप ये समझते हैं मैं किसी जाविये से मुल्ला न दिखाया जाऊं, मैं किसी पहलू से मुसलमान न लगूं, मैं अगर इस्लाम के नाम से मुतारफ हुआ मेरी कंपनी में नुक्ता समझेंगे, मेरी फैक्ट्री में नुक्ता समझेंगे, मुझे हकीर निगाहों से देखा जाएगा, मेरी मार्केट में बाइकआउट किया जा सकता है। हजार डर है जो आपको सता रहे हैं। एक आपका मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, ब्रुनाई के सुल्तान के दस्तरखान पर जब खाना खाया जा रहा था और कुरान की तिलावत का आगाज हुआ, सारे लोग कुरान सुनने के बाद, वहां की शायद ये रस्म है, शाही दस्तरखान पर कुरान की तिलावत के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए गए, लेकिन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उनकी तहजीब से मुतासिर नहीं हुए, बावजूद इसके कि उनके मेहमान थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर वाज़ेह किया, उन्होंने सबूत पेश किया, मैं हिंदू हूं, मैं हाथ दुआ के लिए नहीं उठा सकता, मेरी तहजीब में हाथ जोड़ना है। मुसलमानों गौर करना, एक तरफ तुम हो, तुम्हारी मुस्लिम लीडरशिप है जो जगह जगह हाथ जोड़ती फिरती है। जब तुम एक खुदा के सामने नहीं झुकोगे, हजार खुदाओं के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। जब तुम एक तहजीब के पैरोकार नहीं रहोगे, हजार तहजीबों के सामने तुम्हें सरनिगू होना पड़ेगा। जब तुम अपने तीनों मजहब को ठुकरा दोगे, फिर इसी तरह तुम्हें जलील होना पड़ेगा। नतीजा देखें आप, प्राइम मिनिस्टर ने हाथ दुआ के लिए नहीं उठाए, हाथ जोड़े। आज इंडिया टीवी चैनल
वसल्लम ने इसको खबर बनाकर शाये किया और ये तारुफ पेश किया। दिल के कानों से सुनना, अपने दिल की जमीन पर दस्तक देने की कोशिश करना। अगर हिस्स बाकी है तो आज की रात सोना नहीं, अपना मुहासबा करना। इस जलसे से चले जाने के बाद अपने ईमान की जमीन को टटोलना, तैयार करना, देखना कहां खड़े हो। तुम मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते और वो अपने आप को हिंदू छुपा नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर के इस अमल को इंडिया टीवी कोट कर रहा है और इंडिया टीवी कहता है देखो प्राइम मिनिस्टर की खुसूसियत है, उनकी एक खास बात है, वो ब्रुनाई की सरजमीन पर पहुंचे हैं, वहां की तहजीब इस्लाम है, वहां का सुल्तान शाह है, उनकी ये रिवाज, उनका ये रिवाज है, उनकी ये रीति है कि वो दस्तरखान पर बैठे हैं। जब कोई इतना बड़ा मेहमान आता है तो वो पहले उस तिलावत कुरान कराते हैं, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। सारे लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे और प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़कर साबित किया कि वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। वो हाथ ही जोड़ेंगे, वो हाथ को दुआ के लिए नहीं उठाएंगे। आपने कभी गौर किया अपने नेताओं पे? छोटे से लेके नेताओं की चमची से, चम्मच से, घोटने से और कढ़ाई के बड़े चमचों तक गौर किया आपने? आपकी नेता, आपकी लीडरशिप का हाल क्या है? वो हर एक के सामने हाथ जोड़ते हैं और वो खुश करना चाहते हैं पार्टी के सुप्रीम लीडर को। आखिर क्यों? बोल साहब 2 मिनट। बिल्कुल कतन वो इस इरादे में नहीं होते कि जनाब मन वो मुस्लिम तहजीब को आगे बढ़ाएं, ये इस्लाम का तारुफ पेश करें। वो ऐसा तासुर कबूल कर चुके हैं कि वो किसी सूरत इस पर तैयार नहीं होते। मुस्लिम लीडरशिप की आम सूरत हाल है और फिर ये वहीं से होते 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 नीचे आता है और इतना आता है कि आम मार्केट में बैठा हुआ एक आम मुसलमान उसके गैर मुस्लिम पार्टनर का या उसके गैर मुस्लिम कारखानदार का दोस्त का फोन आता है, वो उधर से कहता है नमस्कार, ये भी इधर से कहता है नमस्कार। सवाल ये नहीं है कि नमन, नमस्कार और नमन के माना क्या है, ये सब बात का पहलू है। सवाल ये है आप इतने मुतासिर क्यों हुए कि उसने अपनी तहजीब को पेश किया और आप अपनी तहजीब भूल गए। ये उसी वक्त मुमकिन हो सका जब मेरी आपकी निगाह में इस्लाम की अजमत न थी, इस्लाम पर अमल न था, उसकी हैसियत न थी। मुसलमानों लौट आओ, अपने आप को इस्लाम की अजमत के तई वफादार करो, अपने आप को इस्लाम की अजमत के तई सच्चा करो और ये तय करो कि आज के बाद अपने मुसलमान होने को जाहिर करोगे, अपने इस्लाम को जाहिर करोगे और अपने मुसलमान होने को जाहिर करते हुए इस्लाम पर रहकर, इस्लाम पर जीकर, इस्लाम पर मर मिटने को अपनी और तमन्नाओं का हिस्सा बनाओगे। इंतहाई मुअक्कर और इंतहाई मोतबर और कहिए कि किबार उलमा की सबके आलिम दीन आपके यहाँ मौजूद है। जाहिर है कि आपको उन्हीं को सुनना चाहिए। मैं चूंकि ऐसे मौके पर पहुंचा कि हजरत मौलाना दामत बरकातुहुम आए और उनसे पहले मुझे पहुंचने में ताखीर हुई। गर्ज ये कि हजरत वाला तशरीफ फरमा है, मुझे जो कहना था मैंने आपकी खिदमत में वो अपनी गुजारिश रख दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल मुझे और आपको इस्लाम अपनाने, इस्लाम पर जमने, दोहरा दीजिए जरा मेरे साथ, इस्लाम अपनाने, इस्लाम पर जमने, इस्लाम का इजहार करने और उसके निफाज की कोशिशें करते हुए उसी पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब बिना किसी ताख़ीर व तमहीद के हमारे माबैन हज़रत अक़दस हज़रत अल्लामा तफ़रील अशरफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, जो इख़लास व मोहब्बत का पैकर, अखलाक़ रज़िया से बालातर, औसाफ़ हसना से मुत्तसिफ़, जिसको हमेशा अदब के आला मकाम पर फाइज किया गया है और अदब की निगाहों से देखा गया है, जिससे मेरी मुराद हज़रत अक़दस हज़रत अल्लामा तफ़रील अशरफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मैं हज़रत वाला को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि उनके घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कि उनके घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कदम छोटे हैं मगर लोग बड़े रहते हैं। और जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत को देखो, और जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत को देखो, ताज पहने हुए जो पैरों में पड़े रहते हैं। और ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, और ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ हजरत वाला से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हजरत वाला अपने नासिहाना कलिमात से हम सब सामईन को मुस्तफीज फरमाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة